السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پھر سے آپ کا استقبال ہے ڈیجیٹل سوشل سائنس یوٹیوب چینل پر۔ میں سیلف ایم رخسانہ، اسسٹنٹ ٹیچر آف غالب ہائی اسکول بیلاری۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج جغرافی کا 9th لیسن نقل و حمل اور مواصلات ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کا مطالعہ کریں گے۔ پہلا بلینک، ہندوستان کے شہروں اور دیہاتوں میں سب سے زیادہ ضروری نقل و حمل کا نام ڈیش ہے۔ سڑک۔ ہندوستان میں پہلی ریلوے لائن ڈیش کے درمیان بچھائی گئی۔ ممبئی سے تھانے۔ ممبئی بندرگاہ کو ڈیش کہا جاتا ہے، گیٹ وے آف انڈیا۔ بنگلور بین الاقوامی ایئرپورٹ کا نام ڈیش ہے، کیمپے گوڑا بین الاقوامی ہوائی اڈا۔ اخبار بمبئی سماچار کا آغاز ڈیش سن عیسوی میں ہوا، 1822۔ ٹرانسپورٹ یا نقل و حمل سے کیا مراد ہے؟ سامان، خدمات اور مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے اور لے جانے کو نقل و حمل کہا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 2، طبعی بناوٹ کی بنیاد پر سڑکوں کے اقسام بتائیے۔ دھاتی سڑکیں، غیر دھاتی سڑکیں۔ دھاتی سڑکیں جو سیمنٹ، کنکریٹ سے تعمیر کی جاتی ہیں۔ کوسچن نمبر 3، سڑکوں کی تعمیری اور نگرانی کی بنیاد پر سڑکوں کی قسمیں کون سی ہیں؟ گولڈن کوڈریلیٹرل سپر ہائی ویز، قومی شاہی راہیں، ضلعی سڑکیں، ریاستی شاہی راہیں، دیہی راستے۔ کوسچن نمبر 4، گولڈن کوڈریلیٹرل اور سپر ہائی ویز کیا ہے؟ گولڈن کوڈریلیٹرل 4 سے 6 لین پر مشتمل سڑکوں کے ساتھ ایک منصوبہ ہے۔ کوسچن نمبر 5، سپر ہائی ویز کیا ہیں؟ شمالی اور جنوبی راہداری جو سری نگر سے کنیا کماری تک جاتی ہے۔ مشرقی اور مغربی راہداری جو آسام سے سلچر سے گجرات کے پور بندر تک جاتی ہے۔ گولڈن کوڈریلیٹرل اور سپر ہائی ویز کو کون نگرانی کرتا ہے؟ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا۔ کوسچن نمبر 7، قومی شاہی راہوں کو کون نگران کرتا ہے؟ سینٹرل پبلک ورک ڈپارٹمنٹ۔ کوسچن نمبر 8، ضلعی سڑکوں کا انچارج کون ہوتا ہے؟ ضلع پنچایت۔ کوسچن نمبر 9، سرحدی راستے کیا ہیں؟ سرحدی علاقوں میں سڑکیں جو خاص طور پر دفاعی مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ کوسچن نمبر 10، سرحدی سڑکیں کون نگران کرتا ہے؟ بارڈر روڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ کوسچن نمبر 11، انگریزوں کے دور میں ہندوستان میں ریلوے کیوں تعمیر کی گئی؟ کیونکہ ریلوے برطانوی دور میں خام مال کی آسان نقل و حمل اور فوج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حرکت کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ کوسچن نمبر 12، کن شہروں کے درمیان پہلی ریلوے لائن بچھائی گئی تھی؟ ممبئی اور تھانے کے درمیان۔ کوسچن نمبر 13، ہندوستان میں سرکاری شعبے کا سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے؟ ریلوے۔ کوسچن نمبر 14، زمینی نقل و حمل کا ایک جدید طریقہ کون سا ہے؟ پائپ لائن۔ کوسچن نمبر 15، آبی نقل و حمل کی 2 اقسام کون سے ہیں؟ اندرونی ملک کی نقل و حمل یعنی کہ ان لینڈ واٹر ویز، سمندری نقل و حمل اوشن واٹر وے۔ کوسچن نمبر 16، سب سے بڑی، سب سے کشادہ اور بہترین پناہ والی بندرگاہ کون سی ہے؟ ممبئی بندرگاہ۔ کوسچن نمبر 17، کس بندرگاہ کو
गेट वे ऑफ इंडिया कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 18, नवा शिवा बंदरगाह का नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 19, मुंबई बंदरगाह पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए कौन सी बंदरगाह तामीर की गई? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी बंदरगाह कर्नाटक का गेटवे के नाम से जाना जाता है? न्यू मंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी बंदरगाह बहरे अरब की मलिका के नाम से जानी जाती है? कोची। क्वेश्चन नंबर 22, किस बंदरगाह में मसनूई बंदरगाह है? चेन्नई बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 23, चेन्नई बंदरगाह पर चेन्नई बंदरगाह पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए कौन सी बंदरगाह तामीर की गई है? यन्नूर बंदरगाह। यन्नूर बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी बंदरगाह सबसे गहरी बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की दूसरी सबसे बड़ी बंदरगाह और जुनूबी मशरकी एशिया की सबसे बड़ी तिजारती बंदरगाह कौन सी है? कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदुस्तान में हवाई अड्डों का इंतजाम कौन करता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 27, इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 28, छत्रपति शिवाजी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 29, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 30, अन्ना बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा कहाँ है? अन्ना बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 31, कंपेगौड़ा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 32, मवासिलात क्या हैं? एक शख्स से दूसरे शख्स या एक जगह से दूसरे जगह पैगामात की रसाई करना। क्वेश्चन नंबर 33, ज़राए अबलाग के दो अक़साम कौन से हैं? ज़ाती अबलाग का ज़राए और अबलाग आमा का ज़राए। क्वेश्चन नंबर 34, ऑल इंडिया रेडियो IAR कब नशर किया गया? 1936 में। क्वेश्चन नंबर 35, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से कब जाना गया? 1959। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदुस्तान का सबसे पुराना और अब भी मौजूद अखबार कौन सा है? बॉम्बे समाचार। क्वेश्चन नंबर 37, GIS जोग्राफियाई मालूमाती निज़ाम क्या है? GIS एक कंप्यूटर पर मुबनी निज़ाम है जो ज़मीन के सतह पर मकामात के मालूमात हासिल करना और समझना ये कंप्यूटर निज़ाम से ही है। क्वेश्चन नंबर 38, GPS आलमगीर कैफियत मकानी निज़ाम क्या है? GPS सतह समंदर से ऊपर अर्जुल बल्द और तूलुल बल्द और ऊंचाई की निशानदही के जरिए एक साकिन या मुतहर्रिक शय या शख्स के मकाम की निशानदही करता है। क्वेश्चन नंबर 39, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी क्या है? यह अशिया को छुए बगैर दो अशिया के दरमियान फासले के बारे में मालूमात इकट्ठा करता है। क्वेश्चन नंबर 40, नक्लो हमल की किस्में कौन सी हैं? फ़िज़ाई, आबी और बर्री नक्लो हमल। क्वेश्चन नंबर 41, ग्राम सड़क योजना का मकसद क्या है? कच्ची सड़कों को सीमेंट या कंक्रीट सड़कों में तब्दील करना। क्वेश्चन नंबर 42, अब अंदरून मुल्क आबी नक्लो हमल महदूद हो गई है, क्यों? इनलैंड वाटरवेज क्यों लिमिटेड हो गया है? क्योंकि सड़कों और रेलवे की तरक्की की वजह से। क्वेश्चन नंबर 43, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और सुपर हाईवेज की वजाहत करें।
गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो कि 4 से 6 लेन सड़कों के साथ एक मंसूबा है। इसका आगाज 1999 में हुआ था। ये शाहराह नेटवर्क मुल्क के बड़े शहरों के साथ साथ सकाफती और सनती मराकज़ को भी जोड़ता है। ये दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 44, हिंदुस्तान में रेलवे निजाम के मुताल्लिक बयान कीजिए। हिंदुस्तान में रेलवे बरतानवी दौर में खाम माल की आसान नक्लो हमल और फौज की एक जगह से दूसरे जगह नक्लो हरकत के लिए तामीर की गई थी। पहली रेलवे लाइन मुंबई और थाने के दरमियान 1853 ईस्वी में रखी गई थी। इसके बाद कोलकाता से रानीगंज, चेन्नई से आरकोनम तक, फिर मुल्क के दीगर हिस्सों में रफ्ता रफ्ता तरक्की की। रेलवे भारत में सरकारी शोबे का सबसे बड़ा इदारा है। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदुस्तान में सड़कों की अहमियत पर मुख्तसर नोट लिखें। ज़राअत और गांवों की सन्नतों की तख्फीफ के लिए सड़कें जरूरी हैं, क्योंकि ये अलग थलग देहात को जोड़ने में बहुत आसान है। जंगलात और पहाड़ी इलाकों में सड़कें तामीर की जा सकती हैं। वो दूर दराज मकामात को कस्बों और शहरों से जोड़ते हैं, डोर टू डोर सर्विस फराहम करते हैं। ये रेलवे समंदरी बंदरगाहों और हवाई अड्डों के फीडर हैं। वो तिजारत और कारोबार और सन्नतों में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। वो रोजगार के मौके पैदा करते हैं और ख़ास तौर पर सरहदी इलाकों में दफा के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद हैं, डिफेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, हिंदुस्तान में फ़ज़ाई नक्लो हमल पर एक नोट लिखें। एयर इंडिया या इंटरनेशनल जो हिंदुस्तान और मुख्तलिफ दिगर ममालिक के दरमियान खिदमत अंजाम करता है। इंडियन एयरलाइंस जो मुल्क के अंदर काम करती है और पड़ोसी ममालिक को भी जोड़ती है। कुछ अरसे पहले तक फ़ज़ाई नक्लो हमल सरकारी शोबे में थी, लेकिन अब निजी फ़ज़ाई ट्रांसपोर्ट कंपनियां गैर शेड्यूल्ड खिदमत के लिए इजाज़तनामे रखी हैं। जेट एयरवेज, सहारा एयरवेज वगैरह। हिंदुस्तान में 141 हवाई अड्डे हैं। हवाई अड्डे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन हवाई अड्डों का इंतजाम करती है। क्वेश्चन नंबर 48, नक्लो हमल की अहमियत बयान करें। ट्रांसपोर्ट इंसानी सरगर्मियों के तमाम अवामिल यानी बुनियादी शोबा, सानवी शोबा और तीसरे दर्जे के शोबे की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ट्रांसपोर्ट के मौसर और सस्ते ज़राए वसाइल ज़राअत की तरक्की, सनती तरक्की को फ़रोग़ देने में मदद देते हैं। मार्केट को वसी करना, अंदरूनी और बैरूनी तिजारत में इजाफा करना, रोजगार फराहम करना, लोगों की आमदनी और मियार जिंदगी को बढ़ाता है, सयाहों की हौसला अफजाई करता है और दफा में मदद करता है, यानी कि डिफेंस में मदद करता है। क्वेश्चन 49, रेलवे ट्रांसपोर्ट की अहमियत बयान करें। रेलवे जमीनी नक्लो हमल का दूसरा अहम जरिया है। वो भारी सामान और मुसाफिरों की बड़ी तादाद को तवील फासले पर यानी कि लंबे फासले पर ले जाने के लिए बहुत मुफीद है। हिंदुस्तान की ज़राअत, सन्नत और मुआशियत की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 50, मगरिबी साहिल और मशरिकी साहिल बंदरगाहों के नाम बताइए। मगरिबी साहिल जवाहरलाल नेहरू, मुंबई, कांडला, कोची, न्यू मंगलुरु, मोरमगोवा बंदरगाहें, जबकि मशरिकी साहिल पर पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नूर, चेन्नई, टुटिकोरिन, कोलकाता, हल्दिया,
पोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन नंबर 51, फजाई नक्लो हमल की अहमियत को बयान करें। फिजाई नक्लो हमल का तेज तरीन जरिया है। मुसाफिरों और डाक को ले जाना बहुत मौसर है। जंग, सैलाब, जलजले फजाई नक्लो हमल जैसे हंगामी हालात के वक्त बहुत मुफीद हैं। हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है और फजाई नक्लो हमल की तरक्की के लिए तमाम साजगार अवामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के अहम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों के नाम बताइए। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा, अन्ना बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा, कंपेगौड़ा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा, राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा, श्री गुरु रामदास जी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 53, मवासिलात की अहमियत क्या है। एक शख्स से दूसरे शख्स या एक जगह से दूसरी जगह पैगामात की रसाई करना। मवासिलात हुकूमती पॉलिसियों और तरक्की के प्रोग्राम के बारे में लोगों में बेदारी पैदा करने में मदद करता है। यह हमें कुदरती खतरात और आफात, मौसम की पेशगोई वगैरह के बारे में जानने के काबिल बनाता है। ये तिजारत, सनत, ज़राअत वगैरह की तरक्की में मदद करता है। ये दुनिया की तफरीह, रोजमर्रा की मालूमात फराहम करता है। मुल्क के इत्तेहाद और सालिमियत को बरकरार रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 54, डाक की खिदमात क्या हैं। डाक खाना बहुत सी खिदमात फराहम करता है। ये एक अहम तरीन मवासिलाती निज़ाम है जो हिंदुस्तान में तवील अरसे से मौजूद है, जैसे खतूत, पैकेट, पार्सल, मनी ऑर्डर वगैरह एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। वो बचत बैंक की सहूलियात भी फराहम करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जारी करते हैं वगैरह। क्वेश्चन नंबर 55, रेलवे और टेलीविजन के इस्तेमालात क्या हैं। ये मास कम्युनिकेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के दूर दराज मकामात पर भी लोग रेडियो पैगामात सुन सकते हैं और टीवी देख सकते हैं। यह हमारे मुतादिद शोबों के लिए बहुत मुफीद हैं, क्योंकि हमारे काश्तकारी, ज़र्री मसाइल, खेती बाड़ी की कीमतों, मौसम की पेशगोई, काश्त के जदीद तरीक़ों वगैरह के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात फराहम हासिल करते हैं। वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम फराहम करते हैं, जैसे तालीमी और मालूमाती खबरें, तफरीह वगैरह। जज़ाकल्लाहु खैरा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।